Hello everyone. So we will start the topic of civil disobedience movement. First question is, at which Congress session was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience movement? So it was authorized at the Congress session of Lahore. That whenever the time जब भी appropriate time आता है, they can launch a civil disobedience movement. So Lahore session of Indian National Congress 1929 authorized Congress working committee to start the civil disobedience movement. Mahatma Gandhi was assigned to lead the movement in the second meeting of Congress working committee held in February 1930 at Sabarmati Ashram. साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को लीडर कहा गया था कि महात्मा गांधी जो है, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है तो महात्मा गांधी विल लीड द मास. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द दांडी मार्च? क्या स्टार्ट हुआ था? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. ठीक है. तो गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस दांडी मार्च और उनके साथ कितने थे? 78 फॉलोअर्स थे. 78 हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन March 12th, 1930. So you have to remember this date, March 12, 1930. The march was over 240 miles. 240 miles था from Gandhi Ji Ashram in Sabarmati to Gujarat coast town of Dandi. तो साबरमती से स्टार्ट होके दांडी को जा रहा था and the distance was 240 miles and it was volunteers walked for 24 days about 10 miles a day. On April 6, 1930, he reached Dandi and violated the salt law, manufacturing salt by boiling seawater. This marked the beginning of the civil disobedience movement. तो एग्जाम में ये भी आ सकते हैं कि what marked the beginning of the civil disobedience movement? It was the violation of the salt law, which started the civil disobedience movement, which was the beginning of the actually civil disobedience movement. This movement spread all over India under the leadership of Mahatma Gandhi. The leader like C. Raja Gopalachari took up salt march in Tamil Nadu. Salt march in Tamil Nadu from Tamil Nadu ऑफ त्रिचिरापल्ली. ठीक है. वेदारण्यम ऑफ त्रिचिरापल्ली, आसाम टू वेदारण्यम ऑफ त्रिचिरापल्ली. तो ये जो है जगह थी जहाँ से इन्होंने किया था. दांडी मार्च वाज अंडरटेकन इन, दांडी मार्च कब अंडरटेक किया गया? तो इट वाज अंडरटेकन इन 1930. आंसर इज डी, 1930. व्हेन डिड दांडी मार्च बिगिन? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1930. महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी. They walked for 240 miles and they completed this march in 24 days. Next question is, which of the following provinces had the highest number of satyagrahis in the Mahatma Gandhi's Dandi march? सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे, किस प्रोविंस में सबसे ज़्यादा जो है सत्याग्रहीस थे? तो it was गुजरात. Mahatma Gandhi with 78 volunteers started Dandi march from Sabarmati Ashram on March 12, 1930 to violate the salt law at sea coast of Dandi, Gujarat. The name of his 78 volunteers is available on the website. ठीक है. ये वेबसाइट अगर आप चाहें तो MK Gandhi www.mk Gandhi, यहाँ पे आप देख सकते हैं 78 volunteers कौन कौन थे. The number and the names of few सत्याग्रहीस which with other respective states as follow. जैसे गांधी जी में 31 जो है सत्याग्रहीस थे, फिर महाराष्ट्र में 13 थे, यूपी में 8 थे, कच्छ में 6 थे और केरला में 4 थे, पंजाब में 3 थे, राजपूताना में 3 थे, बॉम्बे में 2 थे. तो ऐसे ही जो सिंध में 1 थे, तमिलनाडु में, तो इस तरीके से 1 थे. बिहार आप देख लीजिए 1 थे. यूपी का आप देखना चाहे तो यूपी में 8 थे, याद रख लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मैक्सिमम? तो मैक्सिमम कहाँ पे था? साल्ट सत्याग्रह में था. साल्ट सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू का इन्वॉल्वमेंट इसी में था. देखिए, वुमेन्स पार्टिसिपेशन ऑन अ लार्ज स्केल इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दो Gandhi visualized a supportive role of the women, but they started getting impatient and demanded more active role. Gandhi ji chose women for higher role in picketing of the liquor and foreign clothes shop because of their इनहेरेंट, आई थिंक है थोड़ा सा ये जो है इसमें क्लियर नहीं आया है. तो इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ नॉन वायलेंस, यस, दिस इज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ नॉन वायलेंस. कस्तूरबा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह लीडिंग 37 women volunteer from Sabarmati Ashram. Sarojini Naidu led the raid on the धरसना salt work. बहुत इंपॉर्टेंट है धरसना नाम, याद रखिएगा. तो सरोजिनी नायडू led the raid on the धरसना salt work. फिर कमला देवी led the procession of 15,000 to raid the
वाडला सॉल्ट वर्क्स? It is believed that women participated maximum in the salt सत्याग्रह. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड. देखिए विमेंस का पार्टिसिपेशन और भी बहुत सारी जो है जगहों पे देखा गया था. अब स्टार्टिंग में देख लीजिए 1905 में भी विमेंस का पार्टिसिपेशन था, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं. तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है यहीं पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट सत्याग्रह में देखा गया था. हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी. किसने पार्टिसिपेट किया था? तो देखिए ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि सरोजिनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी और कमला देवी चट्टोपाध्याय भी, ये सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. ऑल ऑफ द एबव. ठीक है. नेक्स्ट देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ऑन मार्च 12 1930, ये डेट याद रखिएगा, मार्च 12 1930, महात्मा गांधी लेड बाय 78 फॉलोअर्स स्टार्टेड फ्रॉम द साबरमती आश्रम the famous salt march to Dandi beach to manufacture salt. They reached Dandi on 6 April 1930. तो ये भी देख लीजिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह की क्वेश्चन ना एग्जाम में आ जाए आपके, तो देख लीजिए कि they reached Dandi on 6 April 1930. ठीक है. 6 April 1930 Gandhi ji broke the salt law, marking the launch of the civil disobedience movement. Women played a leading part in this movement. All the women, Sarojini Naidu, Rajkumari Amrit Kaur, Kamla Devi Chattopadhyay, given in the option, participated in salt satyagraha of Gandhi. Next is in 1930 Mahatma Gandhi started civil disobedience movement from. कहाँ से start किया था? It was started from the Dandi. Mahatma Gandhi on 12 1930 with 78 volunteers started his famous Dandi march from Sabarmati Ashram to Dandi. ठीक है, to Dandi, and violated the salt law on April 6 1930, walking 390 किलोमीटर 240 माइल्स था. अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 390 किलोमीटर in 24 days. Next question is the civil disobedience movement was started with. तो it started with the Dandi march. ठीक है, Dandi march was started to what? To break the salt law. ठीक है. हिस्टोरिक दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद, तो इट वाज एसोसिएटेड विद द वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ. ठीक है, सॉल्ट लॉ के वायलेशन से एसोसिएट था. विच इवेंट ऑकर्ड फर्स्ट? पहला कौन सा था? देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है. फिर दांडी मार्च, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन और गांधी इरविन पैक्ट. ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट सबसे पहले जो है अराइवल ऑफ साइमन कमीशन. ठीक है, ये है 1928. इसमें लिख नहीं पाऊंगी मैं. 1928 को अराइवल ऑफ जो है साइमन कमीशन हुआ था. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दांडी मार्च जो है 12 1930 क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन February 3 1928, गांधी इरविन पैक्ट March 5 1931. March 5 1931. Next question is the date April 6 1930 is known in the Indian history for. ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में ये डेट जो है किस चीज से जाना जाता है? तो इट इज नोन फॉर व्हाट? इट इज नोन फॉर दांडी मार्च ऑफ गांधी जी. ठीक है, दांडी मार्च ऑफ गांधी जी. तो डेट अप्रैल 6 1930 नोन फॉर दांडी मार्च फॉर गांधी जी. Mahatma Gandhi initiated the civil disobedience movement by taking a handful of salt at Dandi on April 6, 1930. Subhash Chandra Bose compared the movement with the movement initiated by the Napoleon from the Elba to Paris. The English news reporter ridiculed and said whether an empire can be defeated by boiling water in a kettle. तो ये जो है English newspapers ने ऐसे इस तरीके से इसको टीज किया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्ट एग्जीबिशन वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी 1930. नेक्स्ट इज महात्मा गांधीज ऑब्जेक्ट वाज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू पुअर. तो देखिए ऑप्शन हमारा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. तो इट वाज नॉट टू सपोर्ट द पुअर फॉर द फ्री सॉल्ट, बट इट वाज फॉर द इंडिपेंडेंस, फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. इट वाज फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये चीज थी. देखिए as a symbol of civil disobedience movement initiated by the Mahatma Gandhi, the salt was violated on April 6 1930. Before initiating the movement, Mahatma Gandhi laid 11 demands in front of Viceroy Irwin, including the abolition of the salt tax and the government monopoly on the salt. ठीक है. नेक्स्ट इज क्या स्टेटमेंट है? आई वॉन्ट वर्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट मिथ इज एसोसिएटेड विद. इट इज एसोसिएटेड विद द गांधी जी दांडी मार्च.
Under the salt satyagraha, Gandhi ji reached Dandi village on April 6, 1930. While addressing the domestic and the foreign journalists, he said, "I want word sympathy in this battle of right against myth." So this was the courage. आज जो है कोई भी अगर कुछ भी कोई बुरा करता है, कोई गवर्नमेंट कुछ भी करती है, लेकिन लोगों की अपनी एक पार्टी बनी हुई है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे जो भी हो वो, ठीक है। तो एक जो है पर्टिकुलर चीज़ से सपोर्ट करना, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके विरोध भी आपको उसके विरोध में उठना चाहिए। हमारे लीडर्स ने यही करके हमारे देश को आज़ाद कराया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द गांधी दांडी मार्च? कौन सा सही नहीं? इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द साबरमती आश्रम, द मार्च terminated at Dandi, a village beside the sea. Mahatma Gandhi prepared salt at the seashore. It was although a pedestrian march. ठीक है, तो कौन सा जो है ये सी नहीं सही है हमारा। महात्मा गांधी प्रिपेयर्ड सॉल्ट एट द शोर, ये वाला गलत हो जा रहा हमारा। तो देखिए इट वाज ऑल टुगेदर अब पेडेस्ट्रियन मार्च, ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो है आपका मार्च टर्मिनेटेड एट दांडी, ये भी सही है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो साबरमती से। तो ऑल ऑप्शन करेक्ट एक्सेप्ट सी। सी में क्या है? After violating the salt law at the coast of the Dandi, Mahatma Gandhi decided to start civil disobedience movement. Salt was a major point of the movement because the English government had banned the selling of the salt and also imposed a tax on it, which highly affected the poor. Mahatma Gandhi started the Dandi March, accompanied by 78 of his trusty volunteers from Sabarmati Ashram on March 12, 1930. The march was over 240 miles from Gandhiji Ashram in Sabarmati to Gujarat coastal town of Dandi. The volunteers walked for 24 days, 10 miles a day. On 6 April 1930, he reached Dandi and जो एक सेरेमनी था, एक ऐसे एक मतलब एक तरीके से दिखाना था कि वो जो है उस सॉल्ट लॉ को उन्होंने वायलेट किया है, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द महात्मा गांधी दांडी मार्च? कौन सा सही नहीं है? देखिए इट वाज ऑल टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च। सेकेंड है, इट स्टार्टेड फ्रॉम द साबरमती आश्रम एंडेड एट दांडी, ये दोनों ही सही है। द एंटायर मार्च फ्रॉम द साबरमती वॉज कवर 24 डेज, ये भी सही है। मार्च वॉज स्टार्टेड, नहीं ये जो है 15 मार्च को स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप डेट, अभी हमने कई बार डेट पढ़ा, तो डेट आप एक बार बता दीजिएगा कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग द सत्याग्रह, हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट? तो कौन उनकी जगह आया? तो उनकी जगह है अब्बास तैयब जी, ठीक है, अब्बास तैयब जी। Gandhi ji with its 78 volunteers reached Gandhi village situated at 24 miles away from the Sabarmati ashram on April 6, 1930 and made salt by violating the laws. Abbas Tayyab ji led the movement after Gandhi got arrested at Sholapur. Women also played an important role in the movement. Next is, where was the Mahatma Gandhi when a raid was made by the Congress volunteers on the Dharsana salt depot? ठीक है, तो गांधी जी वॉज इन यरवदा जेल, ठीक है। महात्मा गांधी जी वॉज अरेस्टेड ऑन May 5th 1930 एंड सेंट टू द यरवदा जेल, ठीक है। कब? May 5th 1930 एंड सेंट टू यरवदा जेल व्हेन अ रेड वाज मेड बाय कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन धरसना सॉल्ट डिपॉट. Abbas Tayyibji led the movement. After him, Sarojini Naidu led the raid Dharsana salt depot on May 21, 1930 after Abbas Tayyibji got arrested. Webb Miller, an American journalist, presented the details of this great event. तो Webb Miller का भी नाम याद रखिएगा, Abbas Tayyibji and Sarojini Naidu, ठीक है। Acharya Vinoba Bhave was arrested for the first time for taking part in civil disobedience movement. Acharya Vinoba Bhave was close ally of the Gandhiji. He took part in various movements of Gandhiji. He was arrested 1930 for the first time for taking part in the civil disobedience movement. ठीक है, civil disobedience movement में participate करने के लिए उनको अरेस्ट किया गया. Gandhiji stayed the foreign journalist in his Sabarmati ashram during the Dandi march. So he was Webb Miller. Who was he? He was Webb Miller. ठीक है. Next देखिए इसमें explanation देखते हैं.
Just a second. Yes. Huh. Webb Miller was an American journalist who stayed by Gandhi ji in his Sabarmati ashram during the Dandi March. He wrote about उन्होंने क्या gruesome पुलिस जो एक्सेसेस एट धरसना, तो उन्होंने पूरी रिपोर्टिंग की थी, किसने? वेब मिलर ने की थी. एज अ रिपोर्टर आई हैव सीन न्यूमरस रिवोल्ट्स इन 18 years. आई हैव सीन रॉयट्स. ठीक है, सारी चीज़ें देखी हमने, बहुत हर जगहों पे वो गए. ठीक है, रिवोल्ट्स देखे, बट आई हैव नेवर सीन सच अ हॉरिबल इवेंट लाइक धरसना. धरसना जैसा कोई हॉरिबल इवेंट नहीं देखा. ये किसने कहा था? ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है. और इट वॉज जो है, इट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ वेब मिलर हु रिपोर्टेड द ऑल द होल सिनेरियो ऑफ धरसना मूवमेंट. ठीक है, तो ये जो है. नेक्स्ट, who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April in 1930. ठीक है, तो कौन था ये जो ऑर्गेनाइज किया था मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल इन 1930. ठीक है, तो ये जो है तंजौर कोस्ट पे के कामराज. ठीक है, के कामराज थे जो कहाँ पे? तंजौर कोस्ट पे उन्होंने जो है ऑर्गेनाइज किया था मार्च. ठीक है, फॉर द ब्रेक सॉल्ट लॉ. के कामराज याद रखिएगा. देखिए, वेदारण्यम मार्च और वेदारण्यम सत्याग्रह was organized to protest the salt tax imposed by the British government in India. The march took place in April 1930 and was the second of its kind, followed by Dandi March organized by Mahatma Gandhi, both in the framework of the civil disobedience movement. The Vedaranyam march was led by a group of 100 volunteers from the Indian National Congress (INC) under the leadership of C. Rajagopalachari. It began in Tiruchirappalli, now Tiruchirappalli, and ended in the Vedaranyam. तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तिरुचिरापल्ली से स्टार्ट हुआ था और वेदारण्यम से खत्म हुआ. A small coastal town in Tanjore district. By collecting salt directly from the sea, the marchers broke the salt law. तो ये चीज़ हुई थी यहाँ पे. नेक्स्ट है, who among the following American was with Mahatma Gandhi during the Dandi March? तो he was, अच्छा, हु अमंग्स द फॉलोइंग. तो देखिए, वेब मिलर है, दांडी मार्च की बात कर रहे हैं, तो ये सही हमारा आंसर होगा वेब मिलर. ठीक है, वेब मिलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड खुदाई खिदमतगार्स हु नोन एज रेड शर्ट्स कॉल्ड फॉर, उनको जो है क्या कहते थे? रेड शर्ट. उनको किस लिए जाना जाता था? तो देखिए, द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनिज्म. ठीक है, तो ये जो है नेशनलिस्ट यूनिटी थी और ये एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के लोग थे. ये लोग रेड शर्ट्स भी इनको कहते थे, लाल कुर्ती कहा जाता था, और ये इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था. तो ये लोग जो है एसोसिएटेड थे स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनिज्म के लिए. ठीक है. खुदाई खिदमतगार also known as the Red Shirts was a volunteer organization founded by खान अब्दुल गफ्फार खान. और खान अब्दुल गफ्फार खान, रेड शर्ट. ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, एंड ही कॉल्ड फॉर द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म. दे ऑल्सो शॉट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वेज अर्नर्स. द मुस्लिम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस प्लेड एन important role in civil disobedience movement, while the Muslim of the other provinces were keeping themselves away from the Satyagrah movement. Next question is, Red Shirt organization was founded too. So Red Shirt was found throughout out the Britishers, मतलब ब्रिटिशर्स को बाहर हटाने के लिए सिस्टम से ये था. द सोल्जर्स ऑफ द गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन द रेवोल्यूशनरीज इन. ठीक है, तो ये कब? सिविल डिसोबीडियंस के जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके ऊपर फायर करने से मना कर दी थी गढ़वाल के जो आर्मी के लोग थे. द लीडरशिप ऑफ द Chandra Singh Garhwali, the soldiers of the Garhwal regiment refused to fire on the unarmed crowds of the Peshawar at Peshawar. That is very important. याद रखिएगा. During the civil disobedience movement, it is noticeable that the Khan Abdul Ghaffar Khan was quite active in this area, and Khudai Khidmatgar organization or Red Shirt was outcome of his work done for the people. They played an active role in the civil disobedience movement. The leader Lal Kurti movement was, the movement was of Khan Abdul Ghaffar Khan. Next is, whose name is associated with the Peshawar incident of 1930. So he was Veer Chandra Singh Garhwali. ठीक है. Next question is, हाँ,
जियात्रंग मूवमेंट स्टार्टेड इन, तो ये कहाँ पे, ये मणिपुर में स्टार्ट हुआ था, मणिपुर में। देखिए ट्राइब्स ऑफ मणिपुर आल्सो प्लेड एन एक्टिव रोल अंडर द लीडरशिप ऑफ द नागा ट्राइब वुमेन गौडिल्यू ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। दिस मूवमेंट लेड बाई हर इज नोन एज द जियात्रंग मूवमेंट, ठीक है, जियात्रंग मूवमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज एजिटेशन अगेंस्ट द चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वाज पार्ट ऑफ, तो किसके लिए जो है आपका सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट था, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट था चौकीदारी अगेंस्ट के लिए। देखिए एजिटेशन अगेंस्ट द चौकीदारी टैक्स इन द बेगूसराय वाज द पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द फेलियर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी गेव इंपॉर्टेंस टू, तो किसको इंपॉर्टेंस दिया, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को। देखिए आपको याद होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जब पोस्टपोन कर दिया गया था, मतलब उसको रद्द कर दिया गया था, तो गांधी जी जो हमारा कांग्रेस था, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्रो आपका जो वो लोग थे जो सपोर्ट करते थे रिफॉर्म को, ठीक है, प्रो रिफॉर्मर्स और नो चेंजर, मतलब प्रो चेंजर और नो चेंजर। तो इसमें था जो नो चेंजर्स थे दे वर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्टिव वर्क, और प्रो चेंजर्स थे वो जो है लेजिस्लेशन में जाना जो है उनको ज़्यादा सही लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे नॉन कॉपरेशन के बाद, एंड अगेन आफ्टर द फेलियर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दे engaged in the constructive works, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखिए गांधी जी gave importance to the constructive program after the failure of the civil disobedience movement. In October 1934 Gandhi decided to move away from the active politics to give his all full time to हरिजनोत्थान बोलते हैं इसको, ठीक है। In September 1932 Gandhi जी founded All India Anti-Untouchability League for the welfare of the Harijans and also published the weekly magazine Harijan। तो यही टाइम था सिविल डिसोबीडियंस केस बंद होने के बाद, फेलियर के बाद 1932 में गांधी जी ने एक जो है हरिजन पे काम करना स्टार्ट किया, हरिजनोत्थान के लिए काम किया। उनकी एक मैगजीन भी थी जिसका नाम था हरिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रभावती देवी वाज द फ्रीडम फाइटर ऑफ विच फील्ड, तो शी वाज फ्रॉम पटना, ठीक है। वुमेन ऑफ द बिहार सच एज प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी, राधिका देवी contributed to the freedom movement. प्रभावती देवी was a freedom fighter from the पटना। तो ये हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। अब हमारी हिस्ट्री बिल्कुल एंड की तरफ है। अब इसके बाद एक बड़ा टॉपिक जो सबसे बड़ा है उसमें है मिसलेनियस, उसमें जो है हम स्टार्टिंग से अभी तक के जितनी जो बुक्स हैं, राइटर्स हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे मिसलेनियस में। तो हमारा लगभग जो हमारी हिस्ट्री है, मिसलेनियस एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिवीजन, ठीक है, तो हम देखेंगे। बट हमारी हिस्ट्री जो है अभी मतलब नियरली मुझे लगता है 50-60 पेजेस और होंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।